dear students, welcome back to video lecture series on AMVI Mains Examination, a complete guide. So we are dealing with section A, module number 4, that is hydraulics. In earlier videos we have studied about the fluids, the property of the fluids and the Newton's law of viscosity. So in this lecture we are going to study about the classification of the fluids. So welcome to lecture number 7. So at the end of this lecture you are able to answer the following type of the questions. So question 1, blood is an example of Newtonian fluids, dilatant fluids, rheopectic fluids, pseudoblastic fluids. Question number 2, toothpaste is an example of megaplastic fluid, dilatant fluid, rheopectic fluid, pseudoplastic fluid. Condition for a fluid to be ideal is option A, mu is not equal to 0, tau is not equal to 0, mu is not equal to 0 but tau is equal to 0, mu is equal to 0 but tau is not equal to 0, mu is equal to 0 and tau is also equal to 0. Mu is the absolute viscosity or dynamic viscosity, tau is the shear stress applied. So question number 4, a fluid to be dilatant, the condition is, dilatant fluid के लिए condition क्या है, n is equal to 1 and b is not equal to 0, n is greater than 1 and b is equal to 0, n is greater than 1 but b is not equal to 0, n is less than 1 and b is not equal to 0. So the answer for this question we will discuss at the end of this lecture. So classification of the fluid. You know what is meant by a fluid. It is a substance which will deform continuously under the application of shear stress, no matter how small it is. Okay, छोटा सा छोटा भी shear stress हमने अप्लाई किया तो भी एक ऐसा सब्सटेंस रहता है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, कंटिन्यूसली फ्लो होता है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं फ्लूइड्स. So the classification of the fluids. So first one is ideal fluid, second one is real fluid. So what is mean by ideal fluid? Ideal fluid मतलब उसके ऊपर viscosity 0 रहेगा, viscosity 0 है तो shear stress भी 0 रहेगा. Okay, और जो भी उसका bulk modulus है that will be infinity because bulk modulus is defined as dp upon d rho upon rho. Okay, or minus dp upon dv upon v, compressive stress upon volumetric strain. हमने उसको इक्वेट करके compressive stress upon relative change in the density ऐसे किया था. ओके, तो जो भी आइडियल फ्लूइड रहता है वो इनकॉम्प्रेसिबल रहता है. उसका मतलब है रो इज कांस्टेंट. इफ रो इज कांस्टेंट डी रो, ओके, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रो इज 0. As rho is constant, d rho will become 0. So if it will become 0, then k will become infinity because dp by 0 is infinity. So ideal fluid is having infinite bulk modulus, viscosity 0, shear stress is also 0 and density will be constant for the ideal fluid. So what is a real fluid? Ideal मतलब हमने म्यू और टाउ 0 कंसिडर किया है तो ऑब्वियस है रियल फ्लूइड के लिए म्यू और टाउ वहाँ पे एग्जिस्ट होगा. सो म्यू एंड टाउ एग्जिस्ट, दोज विल बी हैविंग नॉन जीरो वैल्यूज. सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रियल फ्लूइड? सो फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड, सेकेंड वन इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. न्यूटोनियन फ्लूइड्स मतलब जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करते हैं. व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? tau is directly proportional to du by dy. जो भी shear stress apply हुआ है that is directly proportional to the velocity gradient. अगर हो वो directly proportionality हमने एक constant से replace किया then it will be mu, that is the dynamic viscosity. So mathematical expression for Newton's law of viscosity is tau is equal to mu du by dy. अगर ये law follow करता है कोई fluid then it will become Newtonian fluid. अगर नहीं करता है, कुछ पावर लॉ अलग सा
वहाँ पे दिखाता है, then it is a non-Newtonian fluid. So for non-Newtonian fluid, tau is equal to A du by dy raised to n plus b. ओके, तो जो भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो नहीं करते. सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड? फर्स्ट वन इज टाइम डिपेंडेंट, सेकेंड वन इज टाइम इंडिपेंडेंट. फॉर टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स it is thixotropic and rheopectic. For time independent fluids it is a pseudoplastic, ideal plastic or Bingham plastic, and dilatant. So this is the classification of time dependent and time independent non-Newtonian fluids. So we will study one by one. So Newtonian fluid का जो भी study रहता है that is fluid mechanics. If we want to study the non-Newtonian fluid, we have to study the rheology subject. So here you can see the graph between the shear stress applied and the velocity gradient du by dy. Okay, so जो भी यहाँ पे x axis पे दिख रहा है that is velocity gradient, जो भी y axis पे है that is the shear stress tau. Okay, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो x axis अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे continuous deformation हो रहा है when there is no shear stress. Okay, tau is equal to 0. तो अभी हमने देखा tau is equal to 0 किसके लिए रहता है? That is for ideal fluid. So for ideal fluid we can assume that tau is 0, then also there is a deformation is occurring और velocity gradient उस पे कुछ एक्ट करता है. तो उसीलिए एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई फ्लूइड कंसिडर करते हैं दैट इज आइडियल फ्लूइड. ओके, अभी वाई एक्सिस पे आते हैं. वाई एक्सिस पे क्या है? इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 0. ओके, और हमने एक टाउ का वैल्यू कितना भी बढ़ा दिया तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है. बट दिस ग्राफ इज फॉर द फ्लूइड्स. सो एज कंपेयर टू फ्लूइड कितना भी हम शियर स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई कर ले, ओके, वहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है. तो वो किसके लिए पॉसिबल है? दैट इज पॉसिबल फॉर आइडियल सॉलिड और इलास्टिक सॉलिड. ओके, सो वाई एक्सिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं दैट इज फॉर आइडियल सॉलिड. ओके, तो हमको दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस यहाँ पे मिले हैं. एक है आइडियल फ्लूइड ऑन एक्स एक्सिस एंड आइडियल सॉलिड ऑन वाई एक्सिस. तो इनके बीच में भी क्या है? ओके, सो here I have written A and B are A and B are Newtonian fluid, C is a pseudoplastic fluid, D is dilatant fluid, E is ideal plastic or Bingham plastic fluid, F is rheopectic fluid, G is a thixotropic fluid, H is ideal fluid and I is ideal solid. Okay, तो ये दोनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आइडियल फ्लूइड एंड आइडियल सॉलिड की, बट बाकी हमको याद रखना है. तो हम अभी उसको याद कैसे रखना है? यहाँ से स्टार्ट होता है. डायलेटेंट है, उसके बाद ये दोनों भी न्यूटोनियन फ्लूइड है. इसके बाद यहाँ पे सूडोप्लास्टिक फ्लूइड है. इसके बाद जो F पॉइंट है दैट इज रियोपेक्टिक. उसके बाद इट इज बिंगम प्लास्टिक एंड लास्ट वन इज द थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड. तो याद कैसे रखना है? तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स बनाए, तो वो एक सेंटेंस आप याद रखिए तो आपको पता चलेगा. डू नॉट प्रोवाइड रिस्क बेस्ड ट्रेनिंग. ओके, जो भी उसके इनिशियल्स है उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का फ्लूइड होता है. डी मतलब डायलेटेंट, एन न्यूटोनियन फ्लूइड, पी सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, आर रियोपेक्टिक फ्लूइड, बी बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड एंड टी इज थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड. ओके, ऐसे 2-3 सेंटेंस मैंने और बनाए हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आपको याद रखना है. सो डू नॉट पार्क राइट बिफोर दी टोल, डू नॉट परमिट रजिस्ट्रेशंस बाय टेलीफोन. तो आप ये तीनों में से एक भी सेंटेंस अगर आप आपने अच्छे से याद रखा तो ये सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है n इज ग्रेटर देन 1, b इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0. तो ये n और b कब 0 होता है और n कब 1 होता है या लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है, वो हम अभी जानेंगे. जब कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से जब
कोई भी लाइन पास होता है, ओके, और वो स्ट्रेट लाइन रहता है, देन फॉर दैट लाइन n इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से पास हुआ तो वो कर्व होने दो या कोई लाइन होने दो, फॉर दैट b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, ओके। अगर ओरिजिन से पास हुआ, स्ट्रेट लाइन है, देन n इज इक्वल टू 1, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे भी मैंने n इज इक्वल टू 1 लिखा है क्योंकि ये लीनियर है, इसीलिए n इज इक्वल टू 1, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसीलिए b इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे बढ़ते जा रहा है, इसलिए n इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो कम होते जा रहा है, इसलिए n इज लेस देन 1 है। सेम फॉर g एंड f। So a general equation for shear stress and velocity gradient of a fluid can be given by tau is equal to a du by dy raised to n plus b, ओके। ये सब फ्लूइड्स के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ से हम कोई भी फ्लूइड के अगर हमको a n एंड b ये कांस्टेंट अगर हम पता कर सकते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि वो कौन से टाइप का फ्लूइड है, ओके। सिंपल है। अभी यहाँ पे मैं a 0 कंसिडर करता हूँ, ओके, n 1 कंसिडर करता हूँ और b 0 कंसिडर करता हूँ। a 0 मतलब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू 0 हो गया। टाउ 0 हुआ, इसका मतलब है दैट इज अ आइडियल फ्लूइड, ओके। सो इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू म्यू, b इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी अ न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी a और b क्या है, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया है जिसके लिए टाउ 0 है और विस्कोसिटी भी 0 है, ओके। और यहाँ पे टाउ ज़्यादा, इसका मतलब है यहाँ से इस तरफ अगर हम जाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ते जाता है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ते जाता है। तो ऑब्वियस है A इज मोर विस्कस देन B, ओके। B इस साइड है, A उस साइड है, तो A is more viscous than B. This we can say. So moving to next. So here what we will do, we will plot a graph between viscosity and force applied. Viscosity and force applied. So what will be the effect of force on the viscosity? तो यहाँ पे एक एक देखते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड देखते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड की देखिए, जो भी विस्कोसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी du by dy, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ऑब्वियस है फोर्स अप्लाइड के लिए भी वो इंडिपेंडेंट बनेगा, इसलिए यहाँ पे विस्कोसिटी का लाइन यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। ये दूसरा एक है बिंगम प्लास्टिक। पहले क्या हो रहा है, हमको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, उसके बाद उसका विस्कोसिटी कम हो जाएगा और एक कंडीशन के बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड जैसे ही बिहेव कर रहा है, वो न्यूटोनियन फ्लूइड जैसे ही बिहेव कर रहा है, दैट इज नोन एज बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ये ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने एक इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई किया दैट इज यील्ड स्ट्रेस, ओके, उसके बाद ये रेड लाइन और यहाँ पे जो भी ये ब्लू लाइन है ये सेम बिहेव कर ली, ओके। लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसको फ्लो करने के लिए हमें कोई इनिशियल स्ट्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। लेकिन यहाँ पे एक इनिशियल स्ट्रेस हमको लगाना पड़ता है, यील्ड स्ट्रेस, उसके बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड जैसे बिहेव करता है, ओके। इसीलिए जो भी इनिशियल स्ट्रेस लगा है दैट इज यील्ड स्ट्रेस, ओके, तो उसके हम बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। सो हियर यू कैन सी न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए भी कांस्टेंट है, बट पहले उसको फ्लो होने के लिए हमको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो हमने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया उसका विस्कोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक कम हुआ और उसके बाद वो कांस्टेंट रहा, लाइक न्यूटोनियन फ्लूइड, ओके। फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड
if you will apply the force, the viscosity will go on increasing. इसीलिए डायलेटेंट फ्लूइड को shear thickening fluids बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने shear force अप्लाई किया उसका जो भी विस्कोसिटी वो बढ़ते जा रहा है, वो थिक होते जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं shear thickening fluids. एंड अपोजिट सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया उसका विस्कोसिटी कम होते जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं shear thinning fluids. As we are applying the shear, the viscosity of this particular fluid, that is pseudoplastic fluid, is getting decreased. So इसे बोलते हैं shear thinning fluids. Okay. So moving to next, time dependent fluids. Okay. तो यहाँ पे जो भी विस्कोसिटी रहता है फ्लूइड का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम. तो जैसे ही एक फ्लूइड के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया, ओके, और उसको एक टाइम दे दिया, बहुत टाइम तक हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विस्कोसिटी जो है वो कम कम होते जा रहा है, दैट इज नोन एज थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड. उसके अपोजिट जितना टाइम के लिए स्ट्रेस वहाँ पे लगा है उतने टाइम में वो उसका विस्कोसिटी बढ़ते जाता है, दैट इज रियोफैक्टिक फ्लूइड. So we can say that rheopactic fluid is similar to dilatant fluid, okay, and thixotropic fluid is similar to pseudoplastic fluid. But rheopactic and thixotropic, for these two types of the fluids, viscosity is the function of time. Okay, तो जो भी यहाँ पे viscosity के अंदर changes आ रहे हैं, that is because of stress, but with the application of force, that is stress over a time. यहाँ पे जितने टाइम के लिए हम ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके ऊपर विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे रहता है, इसीलिए रियोपैक्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड को टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स बोलते हैं. ओके, टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. सो fluids for which viscosity is independent of velocity gradient, that is Newtonian fluid. That's why for Newtonian fluid the plot between tau and du by dy is a straight line passing through the origin. यहाँ पे origin से पास हो रहा है, इसलिए जो भी b का वैल्यू है that is 0 और straight line है इसलिए n का वैल्यू है 1. Fluids represented by A and B are Newtonian fluids in which A is more viscous than B. A is more viscous than B. Okay. What are the examples of Newtonian fluids? Air है, water, kerosene, thin lubricating oil. Fluids such as blood, thick lubricating oils are non-Newtonian fluids. बहुत सारे examples है उसमें, केचप है, पेंट है, okay, for which the viscosity mu depends upon the velocity gradient, that is du by dy. Okay, जैसे ही velocity gradient में changes आते हैं तो वहाँ पे mu में भी changes आएंगे. Okay, and the fluids which are not following the Newton's law of viscosity are known as non-Newtonian fluids, for which mu will depend on the velocity gradient du by dy. So viscous behavior of these non-Newtonian fluids can be described by the power law, that is tau is equal to A du by dy raised to n plus b, where a, b, n are the constant. Okay, अगर specific बोलना है, A is consistency index, B is one constant and n is flow behavior index. A is consistency index, n is flow behavior index and B is the constant. So we can study the different types of the fluids. Thixotropic fluid, that is the time dependent fluid. Okay, तो यहाँ पे tau is equal to A du by dy raised to n रहता है plus b. Okay, where b is not equal to 0. क्यों not equal to 0? क्योंकि यहाँ से इतने टाइम तक जा रहा, मतलब ओरिजिन से नहीं पास हो रहे हो. ये देखिए, ये जो भी है ऊपर वाला लाइन, दैट इज अ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए बनाया गया है. यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, एंड n इज लेस देन 1, बट दैट b इज द फंक्शन ऑफ टाइम. b इज द फंक्शन ऑफ टाइम.
then the rheopectic fluid, tau is equal to a du by dy raised to n plus b. Here n is greater than 1 and b is not equal to 0, but that is a function of time. Okay, for example है cream, gypsum paste, printers ink, synovial fluid. Thixotropic के लिए thread locking fluid, that is Loctite and solder paste. Coming to next, pseudoplastic fluid, time independent fluid. ये दोनों भी जो भी है that is time dependent. यहाँ पे जो भी pseudoplastic fluid है that is time independent fluid. तो इक्वेशन सेम रहेंगे सबके लिए, सिर्फ n और b के वैल्यू चेंज हो जाएंगे. अभी pseudoplastic fluid के लिए n is less than 1 है and b is equal to 0. b is equal to 0 मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है. ये देखो ये है ना, यहाँ पे ये ओरिजिन से पास हो रहा है. ओके, n is less than 1, b is equal to 0. एग्जाम्पल है मिल्क, ब्लड, जो आप सिरप पीते हो, पेंट, क्ले एंड लिक्विड सीमेंट. ओके, तो कोई भी एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ और ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ओके, so next one is ideal plastic or Bingham plastic fluid. Equation is same, tau is equal to a du by dy raised to n plus b. Here n is equal to 1 and b is not equal to 0. n is equal to 1 मतलब स्ट्रेट लाइन होगा. ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, b is not equal to 0 क्योंकि इसको एक इनिशियल स्ट्रेस हमको लगाना पड़ता है. एग्जाम्पल है केचप, फ्लाई ऐश, लिपस्टिक, टूथपेस्ट, सीवेज, स्लज, ड्रिलिंग मड. तो केचप को बाहर लाने के लिए आपको पहले कुछ इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही वो केचप बाहर आता है. सेम फॉर द टूथपेस्ट. टूथपेस्ट ऐसे आप उल्टा कर दोगे, ओके, उसका ढक्कन निकाल दोगे तो वो बाहर नहीं आएगा. उसके ऊपर कुछ हमको shear स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही वो बाहर आएगा. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल प्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड. द लास्ट इज dilatant fluid. Equation remains same, tau is equal to a du by dy raised to n plus b. Here n is greater than 1, b is equal to 0. b is equal to 0 मतलब ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है. ये देखिए यहाँ पे. ओके, that is the dilatant fluid. Example है butter, wet sand, concentrated solution of sugar and salt, then aqueous suspension of the rice starch. Okay, so this is all about the classification of the fluids, time dependent and time independent. So note, there should not be any confusion between the dilatant and rheopectic fluids. तो सिमिलरिटी क्या है, डायलेटेंट और रियोपेक्टिक में विस्कोसिटी बढ़ता है जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, बट रियोपेक्टिक में क्या है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम. डायलेटेंट में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सिर्फ वो shear स्ट्रेस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन रियोपेक्टिक में वो shear स्ट्रेस कितने टाइम के लिए हमने वहाँ पे अप्लाई किया है वो भी मैटर करता है. सो रियोपेक्टिक इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम, डायलेटेंट इज independent on the time. Even though both properties have increased viscosity as a result of applied stress. जैसे ही आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो उनका विस्कोसिटी बढ़ जाता है. ओके, ये सिमिलरिटी है. लेकिन सिमिलरिटी में भी डिफरेंस कहाँ पे आता है? The difference between dilatant and rheopectic materials is that rheopectic materials viscosity is time dependent. Okay, and increases the longer the stress is applied. जितने टाइम के लिए आप वहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो उसके बाद उसका विस्कोसिटी इंक्रीज होता जाता है. तो इसीलिए यहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट. लेकिन डायलेटेंट के लिए विस्कोसिटी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है. जैसे ही हमने स्ट्रेस में इंक्रीज किया तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियोपेक्टिक मटेरियल एंड डायलेटेंट मटेरियल. रियोपेक्टिक मटेरियल का जो भी विस्कोसिटी रहता है दैट इज टाइम डिपेंडेंट, और डायलेटेंट मटेरियल्स के लिए इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. सो वी आर एट द एंड ऑफ द lecture, so we have to answer some questions which were asked at the start of the lecture. So blood is an example of, तो अभी हमने देखा कि ब्लड जो भी रहता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ pseudoplastic fluid. टूथपेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, टूथपेस्ट को बाहर निकालने के लिए कि इनिशियल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाना पड़ता है और इनिशियल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हम
बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स में लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन कंडीशन फॉर अ फ्लूइड टू बी आइडियल, आइडियल फ्लूइड के लिए हमने देखा कि आइडियल फ्लूइड एक्स एक्स पे होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, डिफॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन शियर स्ट्रेस नहीं है, शियर स्ट्रेस नहीं है, और इसके अंदर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट भी नहीं है, मतलब म्यू भी नहीं है, इसका मतलब म्यू 0 एंड टो इज ऑल्सो 0, क्योंकि एक्स एक्सिस आप देखोगे तो यहाँ पे टाउ इज 0, ओके। और लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसका मतलब है डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है इट इज विदाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, ओके। तो जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं टू फॉर्म वन लेयर अबव दी अनदर लेयर, उस फ्लूइड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ये यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है 0 है, म्यू इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0, दैट इज द केस फॉर आइडियल फ्लूइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A fluid to be dilatant, the condition is dilatant fluid, यहाँ पे सबसे नीचे है dilatant fluid, ओके। तो इसका कंडीशन है n is greater than 1 and v is equal to 0। सो ऑप्शन यहाँ पे हमको दिखता है B, सो ऑप्शन B इज करेक्ट। तो आपको मैंने अभी पढ़ा दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड, कैसे याद रखना है वो भी एक शॉर्टकट दिया है। सो आपको अच्छे से टाइप ऑफ द फ्लूइड्स और उसके एग्जाम्पल्स एंड द कंडीशन आपको याद रखना। सो इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज like, share our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you.